السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حمزہ آن لائن پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ درخشا جو اردو کا کتاب ہے کلاس 10 کا، اس کا آج پارٹ 2 ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جو ہے افسانہ۔ کیا ہے ساتھیوں؟ افسانہ بھابھی جان۔ افسانہ بھابھی جان جو سہیل عظیم آبادی کے دوارا لکھا گیا ہے، اور اس کا ہم لوگ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سبھی پرشنوں کو دیکھنے والے ہیں اور اس کو حل بھی کریں گے۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ اردو کی تیاری کے لیے یا پھر کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری کے لیے ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں، وہاں ویڈیو موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور۔ پہلا ہے ہمارا افسانہ بھابھی جان۔ افسانہ بھابھی جان ہم پڑھ رہے ہیں جو سہیل عظیم آبادی دوارا لکھا گیا۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ افسانہ بھابھی جان کس کے دوارا لکھا گیا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی دوارا۔ کس کے دوارا لکھے گئے ہیں ساتھیوں؟ تو سہیل عظیم آبادی کے دوارا۔ ہمارا پرشن ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام۔ یہ نوٹس کی طرح ہے، اسے آپ اپنے کاپیوں میں اتار بھی سکتے ہیں۔ یہ نوٹس کی طرح، یہ پرشن اتر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے نوٹس کی طرح بنایا ہے۔ پہلا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا جو اصل نام ہے وہ مجیب الرحمن ہے۔ کیا ہے ساتھیوں؟ مجیب الرحمن۔ یہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 پٹنہ میں ہوئی۔ پٹنہ میں ہوئی اور نانیہال میں ہوئی تھی۔ نانیہال میں ہوئی تھی، نانیہال پٹنہ میں ہوئی تھی۔ نانی کے ہاں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی، اور وہیں بھی ان کی تعلیم و تربیت بھی وہیں نانیہال بھدولی میں ہوئی تھی۔ آگے کہہ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہنے کا مطلب جو اس کا اصل گھر ہے، اصل گھر جو ہے وہ شاہپور بھدول میں ہے۔ کہاں ہے ساتھیوں؟ شاہپور بھدول میں ہے، کیونکہ سہیل عظیم آبادی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پٹنہ میں نانیہال کے یہاں ہوئی تھی۔ اب آگے ہے کہ سہیل عظیم آبادی زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کس خاندان سے ساتھیوں؟ تو زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر ہے سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کس نے کی؟ تو سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ پھر سہیل عظیم آبادی نے ساتھی نام کا اخبار روزانہ شائع کیا تھا۔ مطلب سہیل عظیم آبادی نے ساتھی نام کا ایک اخبار شائع کیا تھا، نیوز پیپر شائع کیا تھا۔ اور آگے ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول بے جڑ کے پودے ہے۔ کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول کون سا ہے؟ تو بے جڑ کے پودے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول کون سا ہے؟ تو وہ ہے بے جڑ کے پودے۔ آگے کہہ رہا ہے سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والدہ کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ 1 سال کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کتنے ورش کے تھے؟ تو 1 ورش کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ تو 3 ہی مجموعے افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ہے چار چہرے، دوسرا ہے الاؤ، اور تیسرا ہے آدمی کے روپ۔ تیسرا کیا ہے؟ آدمی کے روپ۔ پہلا ہے 4 چہرے، دوسرا ہے الاؤ، اور تیسرا ہے آدمی کے روپ۔ پھر سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں ہوا۔ کب ہوا ساتھیوں؟ تو 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔
अब आगे है जो किताब में प्रश्न दिया हुआ है वो, और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो सुहेल अजीम आबादी की जो इब्तिदाई तालीम हुई थी वो नानिहाल में हुई थी। नानिहाल में यानी कि पटना में हुई थी। उनकी पैदाइश भी वहीं पटने में हुई थी और तालीम भी वहीं पटने में हुई थी। लेकिन जहाँ हुई थी वहाँ पटना में उस जगह का नाम भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की जो इब्तिदाई तालीम हुई थी वो भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का कहानी में किरदार पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या था? अख्तर था। और रुकैया भाभी के बेटी का नाम पूछ दे तो उसका नाम रेहाना था। क्या था? उसका नाम रेहाना। और अख्तर जिस लड़की से शादी करनी चाहती थी उसका नाम जमीला था और जमीला से ही शादी करना चाहता था अख्तर। फिर आगे है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना काम खतूत लिखकर करती थी। खतूत लिखकर, लेटर लिखकर यानी कि खत लिखकर करती थी। फिर है कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? तो रेहाना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना। क्या था साथियों? तो रेहाना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना। फिर है कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। तो अख्तर जो था वो जमीला के नाम की लड़की से शादी करना चाहता था। जमीला से अख्तर जो था वो शादी करना चाहता था। अब है मुख्तसर सवालात लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं साथियों और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो मुख्तसर सवालात को हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो जवाब में रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था क्योंकि रुकैया भाभी के शौहर सियासत में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। सियासत में क्या करते थे साथियों? तो सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। सियासत का मतलब होता है पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। और उस वक्त तहरीक आज़ादी जोरों से चल रही थी। 5 मिनट रुकने। उस समय तहरीक आज़ादी जोरों से चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर को किसी सियासी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई और जब जेल से रिहाई मिली तो फिर किसी और मुकदमे में 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। कहने का मतलब हुआ साथियों कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। सियासत से क्या थी? काफ़ी दिलचस्पी थी और वह सियासत को अपना मुहारा बनाकर लोगों को आज़ादी के लिए भड़काता था। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो उस वक्त तहरीक आज़ादी यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ आंदोलन चल रही थी। तो उस समय रुकैया भाभी के शौहर को किसी सियासी मुकदमे में सज़ा हो गई और जब वह जेल गए और जेल से जब छूट कर वापस आए तो उन्हें फिर किसी सियासी मुकदमे में 3 साल की सज़ा हो गई। इसलिए रुकैया भाभी के जो शौहर थे उसे बार बार सियासत की वजह से जेल में जाना पड़ता था। आगे है कि रुकैया भाभी कि किस लड़की की तालीम का खर्च कौन बर्दाश्त करती थी और क्यों। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो इसका जवाब है साथियों कि रुकैया भाभी सिमी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। सिमी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। वो इसलिए क्योंकि सिमी अच्छी लड़की थी और उसे पढ़ने का भी शौक था। मगर गुर्बत यानी गरीबी की वजह से इसके वालिदैन इसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन सिमी पढ़ना चाहती थी, इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी उन्होंने सिमी की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त कर ली। इस तरह रुकैया भाभी गरीबों की मदद भी किया करती
थी। इस तरह रुकैया भाभी गरीबों की मदद भी क्या करती थी। कहने का मतलब है साथियों कि रुकैया भाभी जो थी वो सिमी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। वो इसलिए क्योंकि सिमी का जो था वो पढ़ने का शौक था, मगर उनके वालिदैन गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिए रुकैया भाभी ने उसे जो कॉलेज में लेक्चरर थी उस सिमी का खर्च खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया और इस तरह वह गरीबों की मदद भी किया करते थे। आगे है और आखिरी प्रश्न हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। इस VVI प्रश्न में तीसरा नंबर पर जो प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि रुकैया भाभी के सोने को चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। यानी कि ये कहने का मतलब रुकैया भाभी की सोने के चूड़ियों को क्यों बेचवाना पड़ा। तो जवाब, रुकैया भाभी कॉलेज में लेक्चरर थी और सिमी नाम के लड़की का तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। एक दिन सिमी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। बहुत पूछे जाने के बाद रोने की वजह बतलाई और कहा कि भाईजान का MA का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। और हमारे पास क्या है, पैसे भी नहीं है। इसलिए रुकैया भाभी ने सिमी के भाई का तालीमी करियर संवारने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवा दिया। कहने का मतलब हुआ साथियों कि जो सिमी थी एक दिन रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी और रोने लगी, बहुत रोने लगी। बहुत पूछे जाने के बाद रुकैया भाभी को बतलाई कि भाईजान का MA का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। इसलिए जो सिमी के भाई का करियर संवारने के लिए रुकैया भाभी ने सोने के चूड़ियों को बेचकर सिमी को दे दिया।